सिचुएशन थी कि आई डिडंट नो कि क्या होगा. आई ट्राइड टू प्रिपेयर, आई ट्राइड टू पिक अप द बुक्स, बट इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बैठ सकूं. बुक्स उठाना तो दूर की बात है. फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द सब्जेक्ट आई प्लान कि कैसे कैसे कितने कितने चैप्टर्स. इनिशियली आई ट्राई कि सारे टॉपिक्स कवर करने, कुछ भी नहीं छोड़, सारे चैप्टर्स कवर करने. Hello Piyush. Yeah, great. Congratulations for your huge success. थैंक यू सो मच सर. Yes, most welcome. And कैसा लग रहा है आप बताइए, आप अपने बारे में बताइए थोड़ा. Okay sir, so I am from Udaipur, Rajasthan. Oh, very nice. Okay. मैं गया हूँ एक बार उदयपुर. अच्छा सर, हाँ बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है. I would again invite you to come here. Yes. And we will together enjoy. My pleasure. Yes. Yes sir. So I went to, starting with my career, I moved to Delhi for this graduation thing, and I've done my graduation from Sri Venkateswara College, Delhi University. Then from there I moved to EY for articleship in the audit department, and then after 3 months I switched to Deloitte into M&A tax profile. So I did I completed my articleship there, and then I gave my attempt in this attempt, and luckily I was fortunate to clear in this attempt itself. Very nice. And also you secured rank, right? Yes sir, I secured 41st rank. Great, great. We are very happy for you. Yes sir, so am I. But sir, I would like to add on that it wouldn't have been possible without your assistance. I mean, my family, everyone, my family, parents, my brother, sister, so we live in a joint family. So my uncle and auntie and their children, everyone has supported me and guided me. My colleagues from Deloitte, my seniors and teachers, most of all, I would like to say thank you to you first of all, because the subject of which I was the most afraid of was cost, and it's you that has made this subject very easy to study. So I'm really grateful to you for that, and other teachers as well, because they have guided me, motivated me, and the contents that they have provided, the lecture that they have provided, have made it very easy. Yes, So very nice. all the credit doesn't belong to me. I would like to pass it on to you as well, to my family, to God, and to other teachers, my colleagues. Great, great. Actually, आपकी बात से क्या याद आ रहा है ना, जैसे अवार्ड फंक्शन में नहीं होता है. Yes, I'm being very honest. I can understand. Actually, हम लोग जब अवार्ड फंक्शन देखते थे ना, तो ऐसा लगता था कि कोई अवार्ड लेते समय इतने जन को थैंक यू करता है. तो वो वहीं पे जाके आदमी फील करता है कि अब उनका सपोर्ट नहीं होता तो मैं यहाँ तक शायद ही पहुंचता. नहीं पहुंचता. एंड सर ऑनेस्टली मैंने कोई अवार्ड फंक्शन नहीं देखा है का, तो मैं कहीं देख के स्पीच प्रिपेयर करके नहीं आया हूं. इट्स नेचुरल, व्हाट आई एम स्पीकिंग इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड. वो होता ही है, वो नेचुरली ही होता है. हम लोगों को कभी कभी लगता है कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, बट आई कैन अंडरस्टैंड टोटली द इमोशंस दैट आर गोइंग इनसाइड यू, एंड इट्स रियली अ ग्रेट थिंग. मतलब आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू अगेन कि आप सीए बना आपने, वो तो एक अचीवमेंट था ही, बट नाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, योर फैमिलीज लाइफ. लॉट ऑफ things are going to come now in a different way. मतलब आप definitely sir, it's a blessing, what to say. I mean, God has been very helpful to me, so I'm really grateful for this thing. And sir, I'm thankful to you for having me here as well. Yeah. So generally मैं जब स्टूडेंट से मिलता हूँ तो कुछ उनसे सवाल भी पूछता हूँ, जिससे कि बाकी जो जूनियर्स आपको सुनेंगे उनको भी गाइडेंस मिलता रहे. सो वी आर रिकॉर्डिंग दिस मीटिंग फॉर विथ यू, एंड इन जनरल जैसे एक जनरल सवाल है कि देयर मस्ट हैव बीन सम टाइम लाइक यू मस्ट हैव थॉट
टू गिव अप? सर तो वो यू नो क्या था, कब था, और उससे आप कमबैक कैसे किए? सर इस एग्जाम में आई वुड से कि मैंने इतना कुछ देखा है जो मैंने कभी नहीं देखा था. फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल के टाइम पे माय होल फैमिली वाज अफेक्टेड बाय कोविड, and it was not much serious, but still पैनिक. you have to take a complete bed rest for like 15 days. तो मेरी पूरी फैमिली को जब कोविड हुआ तो हम वी वर ऑल ऑन कंप्लीट बेड रेस्ट फॉर 15 डेज. फिर उसके बाद रिकवर करना, फिर उस चीज को रिकवर करने में आई वाज नॉट एबल टू स्टडी फॉर अ होल 1 month. तो उसके बाद रिकवर करना, उस टाइम पे सर ऐसी सिचुएशन थी कि आई डिडंट नो कि क्या होगा. आई ट्राइड टू प्रिपेयर, आई ट्राइड टू पिक अप द बुक्स, बट इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं बैठ सकूं. बुक्स उठाना तो दूर की बात है. तो सर उस टाइम पे समझ नहीं आया कि क्या करूं. आई फेल्ट लाइक कि अब मेरे को नहीं पता, क्योंकि इनिशियली आवर एग्जाम्स वर शेड्यूल्ड फॉर 20th of May. तो और मेरे को कोविड हुआ था 23rd अप्रैल को. तो उस सिचुएशन में सर आई वाज थिंकिंग कि कैसे होगा, पॉसिबल नहीं है. तो आई फेल्ट लाइक कि जो भी होगा, जैसे भी होगा, बस एग्जाम देना है, गिव अप नहीं करना है. फिर लकीली सर 27th को आईसीआई का नोटिफिकेशन आ गया था कि एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं. तो I'm really thankful to God for all this coincidences that happened all together, and it increased my faith in God altogether. तो सर वहाँ पे एक नई उम्मीद मिली. मैंने I thought that yes, God has given me a blessing in this thing also. तो now it's on me to give my 100%, to give my best for my result. रियली वो एक इमोशन होता है, मतलब. Yes, sir. And sir, to add on, this is not the only incident. Throughout my कोविड का इम्पैक्ट तो चलता रहता है, आपको रिकवरी में टाइम लगता है. तो एग्जाम के टाइम पे भी काफी एंजाइटी, काफी स्ट्रेस के चक्कर में आई गॉट सिक. एंड लास्ट पेपर में तो ऐसा सीन था कि आई गॉट ऑल डिजी एंड आई वाज शिवरिंग, आई वाज नॉट एबल टू राइट. सो आई वेंट टू इन्विजिलेटर कि सर मुझे आप कोई पैरासीटामोल दे दो. तो instead of giving me paracetamol, they first came and they checked my temperature, whether I am affected by COVID or what. So everything was good. So I requested them for this medicine, but after I was discussing, they took me out of the room and I was like waiting for half an hour, and after half an hour they finally said ki we cannot provide you any medicine, and now what you have to do is we can only provide you with the coconut water or like a juice. तो सर अल्टीमेटली कोकोनट वाटर लेके पूरी हिम्मत जुटा के एग्जाम दिया. एंड आई वाज लाइक कि ठीक है, एग्जाम के बाद अब हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो यहीं से एम्बुलेंस बुलाओ. जितनी स्ट्रेंथ है वो लगा के देना है, क्योंकि सर हिम्मत नहीं थी वापस देने की. इतने एफर्ट्स दिए थे. तो उस स्टेज पे भी सर मतलब अभी व्हेन आई गो ओवर दैट टाइम, सो आई रियली थैंक गॉड टू गिविंग मी ऑल दिस स्ट्रेंथ एंड टू गो थ्रू, टू फेस ऑल दिस एंड स्टिल टू एंड्योर ऑल दिस थिंग. यस, ये एक मतलब बोलते हैं ना, हर एक स्टूडेंट का अपना एक स्टोरी हो जाता है. yes. कि इतना टफ एग्जाम, इतना चैलेंज, इतना सिलेबस, और हर एक का स्टोरी बहुत यूनिक होता है. बहुत यूनिक होता है. एंड सर ऑनेस्टली ये जो टाइम था, इट वाज क्वाइट चैलेंजिंग. आई एम नॉट सेइंग कि मैंने फेस करा, मेनी ऑफ us would have faced this situation and they would have overcome this situation. So वो एक ब्लेसिंग ही होता है कि आप समय पर उससे लड़ पाए, अपने आप को कंटिन्यू करा पाए, नहीं तो लोग गिव अप कर देते हैं. यस सर. बट सर जो एक चीज सबसे ज्यादा आती थी कि ये सीए की प्रिपरेशन के लिए 10 to 12 आवर्स की स्टडी, जो सर मैं वापस नहीं देना चाहता था. इसलिए जितने भी एवरी पर्सन वुड थिंक अबाउट दिस कि हाँ अब जितना भी है इस अटेम्प्ट में दे दो. ये तो वो सर एक मोस्ट ड्राइविंग फैक्टर होता है टू नेवर गिव अप. मतलब वो चीज दोबारा करना पड़ेगा, इसका डर से इंसान उसको और अच्छे से कर लो, नहीं तो फिर देना पड़ेगा. ये डर है. सही है. बढ़िया है. और बताइए, ऐसे कोई अपना आज वैसा कुछ एजेंडा नहीं है, इन जनरल आपको ऐसे मैं सवाल पूछूं तो मेरे कुछ ऐसे इन जनरल है ना फाइंडिंग्स होते हैं स्टूडेंट्स के सक्सेस से जुड़े हुए. मैं यूजुअली ये मानता हूँ कि वो
हर सक्सेसफुल बच्चा में वो चीज कॉमन निकलता है। तो उसी से जुड़े हुए मैं आपको सवाल पूछते रहता हूँ। यस सर। तो मैं रिटेलिएट करते रहता हूँ कि मैं जो बाकियों को बताता हूँ वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, तो मुझे ये बताइए, जैसे अगर मैं बेसिक सवाल पूछूं कि आप सीए फाइनल की पढ़ाई कब से शुरू की जानी चाहिए, मतलब व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ सीए फाइनल? आप अपने हिसाब से बताइए। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे? हो सकता है उसमें आपकी कोई गलतियां भी हो सकता है आपने जो किया वो सही था। तो व्हाट इज द आइडियल सिनेरियो अकॉर्डिंग टू यू? आई एम नॉट आस्किंग कि आपने क्या किया, बट आइडियली अगर आपसे कोई जूनियर पूछता है तो किस दिन से सीए फाइनल की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए? सर आइडियली आई वुड से कि 1 साल तक आप पूरा ट्रेनिंग पे फोकस करो, अपनी आर्टिकलशिप पे फोकस करो, पूरी लर्निंग्स लो, फिर उसके बाद 1 साल के बाद यू शुड स्टार्ट विथ योर स्टडीज। कोचिंग सर सबका अपना अपना लेवल अप्रोच होता है और स्टडी का एक तरीका होता है। सो इफ यू आस्क अबाउट मी, आई वुड से कि मेरे को आई वुड सजेस्ट कि हाँ कोचिंग ले लेनी चाहिए। बहुत लोग होते हैं जो खुद से सेल्फ स्टडी करना पसंद करते हैं। तो इफ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी और यू आर टेकिंग लेक्चर्स, so I would suggest कि my belief is to start your studies approximately when your first year of articleship overs, or यू आर at least सजेस्टिंग after कि फर्स्ट ट्यूशन आपका फर्स्ट ईयर के बाद होना चाहिए? yes नहीं सर ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बट आफ्टर 10 months के बाद आप अपनी कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड देन तो फिर उसके बाद दिन में 2 क्लास करना पड़ेगा फिर तो? सर दिन में 2 क्लास, क्योंकि सर यूजुअली सी व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव टेकन पेन ड्राइव लेक्चर्स। तो लॉ एंड जो ऑडिट जैसे सब्जेक्ट होते हैं वो 2-2 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं। ज्यादा टाइम लगता है सर एफआर में, जिसमें 3 to 3.5 months लगता है। कॉस्टिंग में टाइम लगता है, जिसमें 3 months लग सकता है। एसएफएम में भी सर 2.5 months में कंप्लीट हो जाती है। तो सर और आई थिंक इट कैन बी मैनेज। एटलीस्ट यू विल गेट अ टाइम ऑफ 4 to 5 months when you have completed all your coaching। ऐसे एक बार ऐड करते हैं, मान लीजिए आपके हिसाब से चलते हैं, 3 months करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का लेते हैं। तो कॉस्ट 3, एसएफएम 3, फिर आपका एफआरबी 3, एवरेज पकड़ते हैं 9, फिर सर ऑडिट एंड लॉ यू कैन कंप्लीट in 3 months बोथ। if you are taking lectures, because sir initially कोई भी ऐसे we only need to, मतलब मेरे अकॉर्डिंग एक आइडिया लेने की जरूरत होती है, क्योंकि इनको वैसे भी जितना भी आप याद करो उतना कम है। तो एक बार आप आइडिया लो, वन टाइम रीडिंग ले लो एंड उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। दैट इज द थिंग दैट वी शुड डू इन 1.5 months और 3 months फॉर बोथ। बट अगर आप लॉ की क्लासेस अगर लेते हैं तो डेली फिर 2 क्लास करते हैं आप, ऐसा कुछ है? नहीं सर, लॉ की मैंने ली थी तो 120 आवर्स का सर लॉ का था एंड 120 आवर्स का ऑडिट का था। तो आई यूज्ड टू टेक 2 or 3 hours फॉर ईच डे। तो कॉस्ट 3, एसएफएम 3, एफआर 3, फिर लॉ ऑडिट 3, कॉस्ट एसएफएम एफआर लॉ ऑडिट 12 months हो गए। फिर आपके डीटी में 4 महीने लग जाते हैं, क्योंकि काफी बड़ा है, बहुत वास्ट है। आईडीटी में सर 3 months 19। और उसके बाद आपका इलेक्टिव में? सर इलेक्टिव तो ऑनेस्टली मैंने क्लास ज्यादा टाइम नहीं दिया था। तो ये 19 महीना तो हो गया ऐसे। यस सर। कम से कम हम लोगों को 5 महीना रिवीजन के लिए रखना चाहिए। 5 महीना रिवीजन, तो 24 हो गया। 24 हो गया। तो एग्जाम जैसे सीए इंटर आपका आर्टिकलशिप के 2.5 years मिलता है, तो 6 months ही आप स्पेयर कर सकते हो, 10 months स्पेयर नहीं कर सकते। सही बात है ना? और इसमें अगर बीच में ब्रेक लग गया तो और गड़बड़ हो जाएगा। मतलब ये पूरा चेन में क्लासेस चल रहा है 2 साल। हाँ सर, वो चेन में तो सर वो कवर करना ही पड़ता है।
हाँ, तो तो इसका जिसका सर, मैं हाँ जनरली क्या एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स को कि आप जैसे ही आर्टिकलशिप रजिस्टर किए वैसे ही चालू कर दीजिए। इससे क्या होता है कि बीच में ब्रेक अगर लग भी गया ना, जैसे आपको कोविड हो गया या कोई ऐसा फैमिली में इंसिडेंट आ गया या कोई फंक्शन ही आ गया, तो ब्रेक आपको अफेक्ट नहीं करता, आपके पास बफर रह जाता यस। है। ये मेरा एडवाइस रहता है इन जनरल स्टूडेंट्स को। तो एक्चुअली ये तो एक आइडियल सिनेरियो हो गया, बट यू नो व्हेन वी जॉइन इन सम फर्म, तो जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो इतना जल्दी नहीं, अलाउ अलाउ ही नहीं नहीं कर करते सकते। हैं। और स्टार्टिंग का टाइम ऐसा होता है सर, लर्निंग आवर्स भी काफी देने पड़ते हैं, क्योंकि वी हैव टू लर्न, एंड फ्रॉम द यू नो फ्रॉम सीनियर साइड दे आल्सो एक्सपेक्ट अस टू गिव लाइक 10 मोर। to 12 आवर्स अ डे। तो सर उसके साथ कोचिंग इनिशियली काफी मुश्किल हो जाता है, बट हाँ 6 months का टाइम, आपने सही बोला, 6 months के बाद वी कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद अ 6 मंथ्स के बाद अगर स्टार्ट करते हैं ना, तो क्या होता है पीयूष, फिर आपके पास बफर ही नहीं है, आपको लगातार करना पड़ेगा। और यही अगर 6 मंथ्स पहले भी स्टूडेंट स्टार्ट कर लेते हैं, तो गिर पड़ के अगर कभी ऑफिस में प्रेशर भी हो गया ना, तो वो अफेक्ट नहीं करता है ज्यादा। यस सर, डेफिनेटली। तो दूसरा एक सवाल है कि रिवीजन पीरियड कितना महीना हाथ में बचाना चाहिए? सर एटलीस्ट 6 months आई वुड से। 6 मंथ्स अगर हम पकड़े तो अभी हम 19 और 5 24 पकड़े हैं, तो फिर एक और यस। महीना हम लोग को पहले आना पड़ेगा, है ना? तो यस सर, बट हाँ ये 6 चक्कर है। months। सर मेरे मेरे केस में तो मेरे पास 3 years का टाइम था, तो मैंने उसके हाँ अकॉर्डिंगली सारी हाँ, मेरी प्लानिंग की थी, और मैंने 12 months के बाद से ही, मतलब लाइक 11 आपने months के बाद से आर्टिकलशिप खत्म होके एग्जाम दिया क्या? यस सर। सर मैंने हाँ, एक्चुअली ईवाई से डिलॉइट में स्किप करा था, तो 2 दिन का गैप आ गया था, अच्छा, तो उस वजह से लाइक 6 महीना मेरा डिले हो गया। 6 महीना। ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपने बताया कि जो बच्चे ट्रांसफर लेते हैं उसके कारण कभी कभी यस सर, 6 महीना का फर्क आ जाता है। फर्क आ जाता तो ये आपके लिए भी एक विन विन हो गया कि आप थोड़ा लेट से स्टार्ट किए तो भी बैलेंस हो है। गए। यस, बैलेंस। राइट। तो ये 6 महीना जब अपने स्टार्ट करते हैं पीयूष, यस तो सर। उस 6 महीने में इन जनरल एक सब्जेक्ट को हम लोग किस तरह से टाइम डिवाइड करें, मतलब सर कितनी बार रिवीजन करें, कैसे पढ़ें, कितना देर पढ़ें, ये सब बच्चों के सवाल होते हैं, आप बताइए। सर इट डिपेंड, सबका अपना अपना अप्रोच होता है। तो सर इस क्वेश्चन पे मेरा जो अप्रोच ये रहता है कि आई पिक वन सब्जेक्ट एट अ टाइम। मैं उसको completely यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग अ सब्जेक्ट आई प्लान कि कैसे कैसे कितने कितने चैप्टर्स इनिशियली आई ट्राई कि सारे टॉपिक्स कवर करने, कुछ भी नहीं छोड़ना, सारे चैप्टर्स कवर करने। तो ये उसके ये देखो, बाद ये जो आपने बोला ना, यही आपका रैंक का सीक्रेट है। अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे एग्जाम, बट अभी भी कुछ कुछ छोड़ के जा रहे हैं। सर छोड़ना ऑप्शन नहीं होता है, बिकॉज इफ वी सी आईसीआई जो पेपर सेट करता है, वी कैन नेवर एक्सपेक्ट कोई भी ट्रेंड के अकॉर्डिंग इट इट डजंट वर्क। कोई भी ट्रेंड आप कितना भी एबीसी एनालिसिस कर लो, कुछ भी कर लो, बट सर एक टाइम के लिए आई वुड से रिवीजन में ठीक है, यू कैन अकॉर्डिंगली डिवोट योर टाइम कि किसको कितना देना है। स्टिल रिवीजन में भी आई वोंट इंसिस्ट कि कुछ छोड़ो, टाइम इसमें यू कैन एडजस्ट। एबीसी एनालिसिस को लेके मैं ये बोलूंगा कि एबीसी एनालिसिस कैसे करना चाहिए? सर एबीसी एनालिसिस फर्स्ट रीडिंग में तो वी शुड गो थ्रू एवरीथिंग, सबको अच्छे से टाइम डिवोट करो। सर आई मैनेज लाइक इन दैट सेंस कि फर्स्ट रीडिंग में आई डिड एवरीथिंग, व्हाटएवर वाज पॉसिबल, जिनसे कभी कुछ नहीं आया। जैसे कॉस्ट में सर वो एग्रीकल्चरल सेक्टर वाला वो चैप्टर था, वो मैंने भी छोड़ा था, क्योंकि सर उससे कभी कुछ आया नहीं, एंड वो मैंने एक बार रीड करा था क्विकली, बट कुछ इतना यू नो रेलेवेंट भी नहीं लगा था, तो दैट चैप्टर आई स्किप, सच चैप्टर वी कुड स्किप ऐसे। फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली फर्स्ट रीडिंग में सब कवर करके सेकंड रीडिंग में I went through all the topics, and I saw the trend of past year papers, analyze करा था कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, ये सब चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे चैप्टर्स थे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है उसका पक्का है, तो ये टॉपिक्स पे कंफर्म है ज्यादा टाइम डिवोट करना है। फिर उसके बाद कुछ
कम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जिनको आप अकॉर्डिंगली अपना टाइम मैनेज कर सकते, बट स्टिल दैट डजंट वर्क, क्योंकि इस अटेम्प्ट में भी सी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से इतने क्वेश्चन आ गए थे, और ट्रांसफर प्राइसिंग से वी नो आए थे, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन से फिर सिर्फ एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। तो एबीसी एनालिसिस इज फाइन, बट यू नो फॉर वन टाइम वी शुड हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, ताकि अगर एग्जाम में कुछ आ जाता है तो वी वुड बी इन अ सिचुएशन टू राइट। राइट, वेरी गुड। तो मैं यही बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि एबीसी एनालिसिस हम लोगों को खुद से करना चाहिए, अपने एनालिसिस से, ना कि बिल्कुल इन जनरल जैसे कोई का ले लिया, कोई बताया और ले लिया, तो वो बहुत रिस्क हो जाता है उसमें, क्योंकि बिल्कुल उन्होंने जिसको सी बता दिया, पता चला वो आपको आता ही नहीं है। तो इंस्टीट्यूट तो उनके एबीसी से नहीं चलता ना, इंस्टीट्यूट पूरे सिलेबस से चलता है अपने। तो मुझे लगता है कई बार इंस्टीट्यूट को भी पता होता है, वो भी तो यूट्यूब में वीडियोस देख रहा होता है, अच्छा बच्चा लोग अभी क्या कर रहा है, अच्छा इसका एबीसी एनालिसिस आया, चल बेटा। तो समझ नहीं आता फिर यूट्यूब पे कोई कैसे बोल सकता है कि आप ये छोड़ दो ये पढ़ लो। अब ऑफ कोर्स एग्जामिनर जब ये वीडियो देखेगा तो उसको भी तो पता चल गया, अच्छा बच्चा लोग ये छोड़ के जा रहा है, चल आ जाओ तुम लोग, अब मैं पकड़ूंगा। वो भी रिसर्च करता होगा कि यूट्यूब में बच्चा लोग क्या पढ़ के जा रहा है, अभी इसका हवा हो रहा है, चल अब बेटा दूसरा पेपर निकालते हैं इस बार। बिल्कुल। तो ये भी मजेदार चीज है, बट ये फाइनल लेवल में यू नो स्टूडेंट्स को समझने का जरूरत है कि देयर कांट बी एनी शॉर्टकट, देयर कांट बी। मेरे पास ऐसे एक स्टूडेंट आए थे, जस्ट फॉर ऐसे कैजुअल आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने मेरा पूरा क्लास कर लिया, ठीक है, सर आपसे मिलना है, बोला अच्छा मिल लीजिए आइए। तो आए, फिर सारा मैट मेरे सामने रखा, सर आपकी सारी क्लासेस हो गई है, ये रहा आपका मैट। मैं बोला तो मुझे क्यों दिखा रहे हो? बोला सर अब इसमें से मार्क करके दीजिए मेरे से एग्जाम के लिए क्या क्या पढ़ना है। मैं बोला मतलब सारा पढ़ना है? बोला सारा पढ़ना है, अरे बाप रे बाप ये कैसे पॉसिबल है, आपने तो इतना सारा पढ़ा है। बोला तो इसलिए तो पढ़ा है क्योंकि वो एग्जाम में आएगा। बोला अरे ऐसे कैसे हो सकता है, वो अपने सदमा में चला गया। ये आज भी वो दिन याद आता है, बोलते इतना सारा कौन पढ़ेगा, आप मार्क करके दीजिए अब क्या क्या पढ़ने गए मेरे को एग्जाम के लिए। ये सर बीइंग अ टीचर ये सब आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता होगा, कैसे कोई बता सकता है सर, आई डोंट नो कि कोई कैसे बोल सकता है ये पढ़ लो, ये ठीक है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वी कैन से, बट स्टिल वी कैन नॉट से कि उसमें क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलने से ही स्टूडेंट जितना प्रेशर में है, पढ़ाने वाला या बोलने वाला उतना प्रेशर में नहीं है। स्टूडेंट का प्रेशर अलग लेवल का है, तो जैसे ही उसको फिर कोई बोल देता है इम्पोर्टेंट है ना, तो उसका माइंड उसके प्रति डाइवर्ट हो जाता है, उसको लगता है कि यार मैं जो कुछ किया हूँ वो कुछ भी नहीं किया हूँ, वो पहले करना पड़ेगा। तो मैं ये हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, एबीसी एनालिसिस आपका खुद का होगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, जो नहीं आता है उसके ऊपर काम करना है, और जो आता है उसको भी रिटेन करना है। ऐसा करने से सक्सेस इजी हो जाता है। बिल्कुल सर, और एबीसी एनालिसिस करते टाइम वी कैन सी आवर स्ट्रेंथ एज वेल। जैसे आई वाज स्ट्रांग इन ट्रांसफर प्राइसिंग, तो मैंने उसको सर 2 बार रिवाइज करके फिर उसको ऊपर से गो थ्रू कर लिया था। आई नो इट वाज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, बट आई नो माय स्ट्रेंथ एज वेल। तो मेरे को पता था कि इसमें मुझे इतना टाइम डिवोट करने की जरूरत ही नहीं है। सर रेलेवेंट कॉस्टिंग जैसे टॉपिक हो गए जो थोड़े प्रैक्टिकल टॉपिक्स होते हैं, आई नो कि आई एम स्ट्रॉन्गर ऑन दोज साइड्स, तो अकॉर्डिंगली मैंने उनको कम टाइम डिवोट करा। जिन टॉपिक्स में आई वाज वीक लाइक परफॉर्मेंस इवोल्यूशन, तो सर उसको मैंने काफी, क्योंकि वो इट इज अ थ्योरेटिकल टॉपिक, तो उसको मैंने मेरे अकॉर्डिंगली काफी टाइम दिया था। तो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू नो यू हैव टू एनालाइज व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स and what are the areas that you need to devote time, and accordingly you need to set up, जिसके accordingly। एक क्वेश्चन और है स्टूडेंट्स का रहता है बहुत बार कि सर थ्योरी कैसे याद करें, सर वो याद नहीं होता, थ्योरी याद करेगी समझें, आपका क्या टेक है उस पे? सर थ्योरी मेरा खुद का काफी यू नो आई वोंट से कि इट इज क्वाइट वीक, आई वुड से मेरे को काफी बार उसको पढ़ना पड़ता है। तो सर कैसे, मतलब मान लीजिए आप जैसे ही कोई स्टूडेंट आ गया, तो उसको कैसे मेकअप करना चाहिए, कुछ आइडियाज दीजिए आप कि थ्योरी कैसे करें, मतलब वो बहुत वीक स्टूडेंट है जिसको थ्योरी नहीं याद होता। सर आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल ही नीड्स टू एनालाइज हिमसेल्फ। कुछ लोग होते हैं जिनको एक बार पढ़ के बहुत जल्दी याद हो जाता है, बट दे फॉरगेट थिंग्स वेरी क्विकली। कुछ लोग होते हैं जिनको बार मतलब
वन टाइम रीडिंग में दे नीड टू गो थ्रू 4 or 5 times, लाइक मी, फॉर एग्जांपल मेरे को एक बार पढ़ते टाइम उसको 4 से 5 बार पढ़ना पड़ता है, बट वंस आई गेट इट आई कैन रिमेम्बर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पढ़ के भी 4-5 पढ़ के भी समझ नहीं आ रहा है, तो उनके लिए फिर राइटिंग स्किल, राइटिंग हैबिट इज अ वेरी गुड हैबिट फॉर देम. ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम, but as you said, there is no shortcut to CA, there is no easy way to CA, so they need to analyze themselves कि वो कहाँ पे लैग कर रहे हैं, accordingly उनको वही अप्रोच फॉलो करना चाहिए. जैसे जिनकी थ्योरी वीक है, जिनको पढ़ने से भी याद नहीं हो रहा है, तो उनको लिख लिख के याद करना चाहिए, तो उससे उनका रिटेंशन जो टाइम होगा वो भी बढ़ जाएगा. एंड नेक्स्ट टाइम पे जब वो रिविजन करेंगे तो दे कैन गो थ्रू थिंग्स वेरी क्विक. बहुत अच्छा आपने बोला. मेरे को एक वो याद आ गया, पहेली. ठीक है, रिडल. यस सर. मैं आपसे पूछता हूँ, आप उसका जवाब दे पाते कि नहीं, मैं देखता हूँ. क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना. यस. खीरा खाते हैं ना अपने, खीरा, क्यूकम्बर. यस सर. खीरा खारा क्यों हुआ? आंसर अभी मत देना, क्वेश्चन सुनो. खीरा खारा क्यों हुआ? रोटी क्यों जली? घोड़ा जिद्दी क्यों हुआ? घोड़ा. ठीक है, खीरा खारा क्यों हुआ, रोटी क्यों जली, घोड़ा जिद्दी क्यों हुआ, और पढ़ाई क्यों भूला? पढ़ा हुआ क्यों भूल गया? ये 4 सवाल है, चारों का जवाब एक ही है. टेक योर टाइम. Sir, I would have worded lack of, attention or concentration. चारों में फिट करो. रोटी क्यों जली? खीरा खारा क्यों हुआ, रोटी क्यों जली, घोड़ा जिद्दी क्यों हुआ, एंड व्हाट इज द लास्ट वन? पढ़ाई क्यों भूला? पढ़ाई क्यों भूला. सर किसी भी काम को मैंने करा, बट पूरी विथ ऑल माय फोकस मैंने वो काम नहीं करा. तो उससे खीरा खारा कैसे हो जाएगा? सर खीरा खारा, खारा यू मीन सॉर, राइट? हाँ, खीरा बहुत बार आप खाते तो खारा निकल जाता है ना. सर वो जो द फार्मर हु ग्रू इट, उसने टाइम पे. अपने घर में खीरा आता है, कभी कभी आप खाते खारा हो जाते हैं, मम्मी को पूछेगा क्या करना चाहिए उस समय. सर मे बी पानी में डाल के रखना. खीरा को ना काटने के पहले, पूरा कट करने के पहले उसको घुमा घुमा के उसका जहर निकालना पड़ता है, व्हाइट वाला. अच्छा. कभी देखा खीरा कटिंग किया है? सर मैं खीरा खाता ही नहीं, मुझे आइडिया ही नहीं. अच्छा चलो, तो चारों का जवाब एक ही है, और वो है कि घुमाया नहीं उसको. अच्छा. खीरा को काट के घुमाया नहीं, उसका जहर निकला नहीं तो खारा हो गया. रोटी क्यों जली? घुमाया नहीं तो जल गई. घोड़ा जिद्दी क्यों हुआ? उसको घुमाया नहीं. अच्छा. हाँ, राइट. और पढ़ाई क्यों भूला? पढ़ाई को भी घुमाया नहीं तो भूल गए. यू हैव टू रिपीट, गो थ्रू करना पड़ेगा, घुमाते रहना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल. तो यही खेल यही है. देखिए, मैं तो सबसे बात करके एक कॉमन निष्कर्ष पे आता हूँ, तो एक ही चीज पता चलता है कि फॉर्मूला वही है. बस एग्जीक्यूट जब करने जा रहे हैं ना लोग, अपना अपना तरीका बना ले रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं आ रहा है. अगर स्टैंडर्ड तरीका पकड़ लें तो रिजल्ट आएगा. स्टैंडर्ड तरीका सिंपल है कि आपको अपना कोर्स 6 महीना पहले खत्म करना है. बिल्कुल. बस ये एकदम पहला माइलस्टोन होना चाहिए. 6 महीना पहले मेरे को सारा कोर्स खत्म करना है. भले आप लेट से स्टार्ट करो या आप जल्दी स्टार्ट करो, आपको अपने एबिलिटी के हिसाब से सोचना है. और उस 6 महीने में 3 बार घुमाना है, जिससे कि एग्जाम हॉल के लिए आप प्रिपेयर्ड हैं. लोगों का लास्ट मोमेंट तक क्लासेस ही नहीं खत्म हो रहा है. ठीक है, फिर क्लासेस भी अधूरा कर रहे हैं, सिलेक्टिव स्टडी करना चाह रहे हैं. ये सीए है, ये ऐसा वैसा एग्जाम नहीं है, राइट? 3 बार रिवीजन अगर नहीं हुआ तो मतलब आई डोंट थिंक आपको एग्जाम में कुछ याद आएगा. वहां पे सर इतनी नर्वसनेस होती है, एंड आईसीआई जो क्वेश्चन देता है वो इतने डीप डाइव करके, डिग करके, पॉइंट पॉइंट पे सर दे आस्क क्वेश्चन.
तो अगर आपने उसको 3 बार, मिनिमम 3 बार रिवीजन, आई एम सेइंग, क्लास के साथ साथ एक बार पढ़ा, वो भी पढ़ना जरूरी है. So जब once when we take coaching, so it is quite important that we simultaneously go through the subject on our own, and then उसके बाद रिवीजन 3 बार मिनिमम करना जरूरी है. अच्छा, अदरवाइज इट जैसे बिकम्स स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि सर Yes, मैं पहला सब्जेक्ट पढ़ता हूँ ना, yes. तो मैं दूसरा भूल जाता हूँ, मतलब दूसरा सब्जेक्ट पढ़ने आता हूँ तो पहला भूल जाता हूँ, तो ऐसा सिचुएशन में क्या करना चाहिए? सर ये तो दिस सिचुएशन इज क्वाइट नेचुरल, सबके साथ ही होता है. कोई भी नहीं कह सकता है कि एक सब्जेक्ट पढ़ा तो चलो ठीक है, उस एक सब्जेक्ट पढ़ा, दूसरा पढ़ा, दूसरे के टाइम पे पहला याद रहेगा, तीसरे के टाइम पे फिर भी चलो थोड़ा थोड़ा पहले का याद रहेगा. जब आप चौथे पे आओगे तो सब blank फर्स्ट हो का जाएगा. पॉसिबल ही नहीं है. तो सर वही है, जब इसलिए तो सर 3 times रिवीजन भी नीड. जैसे जैसे हमारे माइंड का, सर मेरे को ऐसा लगता है कि एक चीज को जितनी बार हम पढ़ते जाते हैं ना, माइंड उसको याद करता जाता है और उसको आप कम कम भूलने लगते हो. या फिर अगर आप उसको भूलते भी हो तो आप जैसे उसको सेकंड बाई टाइम, थर्ड टाइम करते हो, तो जो टाइम चाहिए होता है वो कम होता जाता है. तो सर इसीलिए मैंने बोला कि लर्निंग इफेक्ट. यस सर, सिनर्जी एंड यस सर, लर्निंग इफेक्ट. लर्निंग इफेक्ट. तो फर्स्ट टाइम में मैंने इसलिए बोला, अगर आप खुद से सेल्फ प्रिपरेशन भी करते जाते हैं ना, तो जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन में उठाते हैं, उस दैट टाइम इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू. देन सेकंड टाइम इट बिकम्स मोर इजी. थर्ड टाइम में आपको 2 से 3 दिन, दो दिन मैक्सिमम आपको एक सब्जेक्ट के लिए, 3 दिन मैक्सिमम आपको एक सब्जेक्ट. राइट. अच्छा, एक और चीज बताइए, अब जब आप फर्स्ट रिवीजन किए थे तो यस सर. उस समय आपने कहाँ कहाँ से पढ़ा था? सर फर्स्ट रिवीजन में, टू बी ऑनेस्ट, कॉस्ट में एंटायर टाइम मैंने, सर आपके नोट्स के अलावा मैंने कहीं से रेफर नहीं करा था. इनिशियली सर आप जो क्लासरूम में कराते हो, नॉर्मल क्लासरूम में इन डेप्थ लर्निंग जो होती है, उससे मैंने सारा रेफर करा था. ओल्ड कोर्स, न्यू कोर्स के सारे क्वेश्चन करे थे फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे. देन सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन में आप बाकी सब्जेक्ट्स का भी जनरल वे बताइए मेरे को. यस सर, जनरल वे. एसएफएम में सर मैंने सर टीचिंग के जो सर के नोट्स थे वो रेफर करे थे. उसके अलावा इंस्टीट्यूट का भी सारे क्वेश्चन आई हैड गॉन थ्रू. थ्योरी मैंने सर इंस्टीट्यूट के गॉन मटेरियल थ्रू से, मतलब? सर एक बार चेक कर लिया था कि वो क्वेश्चंस मेरी जो सर के नोट्स हैं उसमें कवर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बट एवरीथिंग वाज कवर्ड. एंड उसके बाद थ्योरी सर मैंने सारी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से की थी. एफआर के लिए सर जो मेरे सर थे, उनके जो भी नोट्स थे एंड उनके जो भी बुक्स थी वो सारा करा था. और उसके अलावा इंस्टीट्यूट का भी करा था, क्योंकि हमारे टाइम पे देयर वर अ लॉट ऑफ एडिशंस इन ईच टॉपिक जो आई हैड टू गो थ्रू. आई हैड टू डेफिनेटली कवर ऑल ऑफ देम. तो मैंने वो सब भी इंस्टीट्यूट से भी करा था, सर के उससे भी करा था. देन मतलब आई वुड से कि हर सब्जेक्ट में एटलीस्ट आई हैड गॉन थ्रू स्टडी मैट एंड हैड ट्राइड टू कवर कि जो भी मेरे पास मटेरियल है उसमें वो स्टडी मैट का कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपने कोई समरी नोट्स भी बनाया था? सर समरी नोट्स एज सच सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट्स में. प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में सर जैसे एसएफएम है उसमें बहुत कम ही थ्योरी होता है, तो आई यूज टू साइड में ही समरी बना लेता था. जो भी टॉपिक होता था उसके साइड में आई यूज टू ब्रीफ दोस टॉपिक्स इन 3 or 4 days. वैसे ही कॉस्ट में अप्रोच फॉलो करा था. कॉस्ट में केस स्टडी होती है इतनी बड़ी बड़ी, उसको बार बार करना पढ़ना फिजिबल नहीं हो पाता. तो उसके लिए आई यूज टू राइट few points, summarize them in few words or few lines, the entire paragraph or topic I would say. तो समरी में जैसे 7 पॉइंट हैं तो सातों पॉइंट को मैंने साइड में लिख लिया. एंड देन सेकेंड और थर्ड रिवीजन में आई यूज टू गो थ्रू ओनली दोज पॉइंट्स. तो उससे काफी टाइम बच जाता. तो एज सच कोई नोट्स नहीं, बट हाँ सर समरी में उसके साइड में समराइज कर लेता था जो भी टॉपिक. सेकंड रिवीजन में क्या क्या किया? सर सेकंड रिवीजन में तो सर जो मैंने मार्क कर रखा था सब टॉपिक्स में मैंने मार्क कर लिया था कि इसको यहाँ से रेफर करना है. देयर वर सम टॉपिक्स व्हिच आई हैड टू रेफर फ्रॉम इंस्टीट्यूट मटेरियल. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स वर फ्रॉम माय कोचिंग मटेरियल व्हिच आई हैड गॉन थ्रू. तो मैंने फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे आई हैड मार्क्ड एवरीथिंग एंड आई हैड प्लान्ड एवरीथिंग कि नेक्स्ट सेकंड रिवीजन में मेरे को ये करना है. एंड सेकंड रिवीजन में आई हैड ऑलरेडी मार्क कि थर्ड रिवीजन में मुझे ये
वेरी नाइस. तो उसी के अकॉर्डिंगली आई प्लान्ड एंड आई रेन अकॉर्डिंग टू माई प्लान. बोलते हैं ना, इफ यू fail to plan, you are planning to fail. प्लानिंग टू फेल डेफिनेटली. प्लानिंग तो सीए फाइनल में सर पॉसिबल नहीं. आप सब कुछ कवर कर लो, आप कर भी लो, तो एग्जाम में सर जो 1.5 दिन 1.5 डे का टाइम मिलता है वो तो सर किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है. तो अगर आपने एक स्ट्रक्चर मैनर में डिसाइड नहीं कर रखा आपको क्या पढ़ना है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है सर किसी के लिए पूरा. 1.5 दिन में कैसे कवर करते थे पूरा? सर हर टॉपिक के आई हैड मार्क. इफ आई टॉक अबाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, तो हर टॉपिक के आई हैड मार्क, लाइक हर चैप्टर से मैंने आई हैड मार्क 4 और 5 क्वेश्चंस डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द चैप्टर. किसी में 1 या 2. तो ऐसे आई हैड मार्क. थ्योरी में भी आई हैड मार्क कि हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है विच आई हैव टू क्रैम, एंड अदरवाइज अदर टॉपिक्स आई कैन गिव अ रीड एंड आई कैन गो. तो ये अप्रोच आई फॉलोड एंड this way I covered my syllabus in 1.5. जैसे ऑडिट में बहुत लोगों का स्कोर नहीं आता है, तो उसके लेकर आप कुछ बता सकते हैं? सर ऑडिट में मेरा भी स्कोर अच्छा नहीं था. फिर भी आपको क्या लगता है कि क्या चीज करने से शायद और बेटर हो सकता था? सर ऑडिट कहाँ का चूक? तो वही जितनी आपको सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम रीडिंग के टाइम पे आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि ऑडिट इज वेरी वास्ट. एंड ऑफ कोर्स ऑडिट में हमको वी हैव टू लर्न थिंग्स होल हार्टेडली. तो उस जगह पे वी नीड टू मेक नोट्स. एंड फिर उसके बाद सर नोट से ही पढ़ा था, बट अनफॉर्चुनेटली इस बार ऑडिट का पेपर वाज क्वाइट टफ, एटलीस्ट फॉर मी. तो बहुतों के जो लिए पढ़ा था सर उससे कम आया, इस वजह से थोड़ा मिस बैलेंस. नॉर्मली ऑडिट में मुझे लगता है, मैं अपनी तरफ से अगर गाइड करूं, Yes, sir. तो Definitely. हर आंसर में ना बहुत सारा क्रॉस कनेक्शन होता है अलग अलग कॉन्सेप्ट्स का, जो जनरली स्टूडेंट्स ओवरलुक कर जाते हैं. उनको लगता है कि लिख लेंगे, बट वो क्रॉस लिंक रिटेन नहीं कर पाते हैं. और इंस्टीट्यूट वो क्रॉस लिंक खोज रहा होता है, हर एक लिंक का एक मार्क्स अलॉट करके बैठा हुआ होता है. अब Definitely. आपका आंसर का आपका वॉल्यूम ठीक है, बट डिफरेंट जगह जो लिंक करना था वो नहीं बैठा, तो नंबर नहीं आते. Yes, sir. वो चीज में इनफैक्ट कॉस्टिंग में भी ऐसा है भी कि क्या है ना कि आपका जब केस स्टडी पढ़ते हैं तो आप देखिए, कोई एक केस स्टडी में कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एक ही कॉन्सेप्ट से केस स्टडी है. दे आर ट्राइंग टू लिंक मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इन अ सिंगल केस स्टडी. मेनी टाइम्स केस स्टडी में जो स्टोरी है, स्टोरी को भी कॉन्सेप्ट से लिंक कर रहे हैं. वो लिंक Yes, sir. Definitely. इन जनरल हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं. Overlook. और वो क्यों कर जाते हैं? क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़े होते हैं, अपने सोचते हैं कि अपने से हो जाएगा, तो मोटा मोटा लिख लेंगे, तो वो लिख नहीं पाते हैं एक्चुअली. Like, सर उसका यही सॉल्यूशन है. आई थिंक यू आर डैम ऑन पॉइंट कि हमको बार बार उसको पढ़ना पड़ता है और हाँ. लिंकिंग की अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ती है. हाँ, अगर उसको ओवरलुक कर गए तो फिर नंबर नहीं आता. राइट. वो मेमोरी बैंक में सेट करना पड़ता है. मुझे लगता है मेमोरी में एक बैंक होता है. जैसे आप मान लीजिए आज क्लास 1 से लेके आज सीए तक की जर्नी में इतनी सारी आप जो पढ़ाई की है, मेमोरी में बैंक में वो है. अब आगे जाके लाइफ में कोई भी चीज का जब जरूरत पड़ेगा ना, लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल, तो क्या चीज का कब जरूरत पड़ेगा आप देखना, आपका मेमोरी बैंक वहां से खोज के निकाल जाएगा. ये क्लास 1 का ले लो, ये क्लास 10 का ले लो, ये बीकॉम का ले लो, ये सीए का ले लो. वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है. क्योंकि रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आएंगे वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के या पर्टिकुलर लेवल के नहीं होते हैं. वो एक अपना यूनिक प्रॉब्लम होता है. उसको सॉल्व करने के लिए मेमोरी में डेटाबेस चाहिए, बैंक चाहिए. तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स यदि दो चीज से सीख ले, एक कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वेश्चन के पॉइंट्स, Yes, sir. उसका बैंक अगर मेमोरी में बना ले, तो एग्जाम में नया चीज भी आता है ना, Yes. तो बैंक अगर है, रिटेंशन है, तो माइंड आपका खोज के अपने आप कुछ के सॉल्व निकाल करेगा, सर्च करके निकाल लेगा. बट अगर यहाँ खाली है तो कुछ नहीं तो होगा. फिर पॉसिबिलिटी. तो आई एम नॉट सेइंग कि यू हैव टू स्टोर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट यू हैव टू डेफिनेटली अंडरस्टैंड द कैलकुलेशंस. एट द सेम टाइम यू हैव टू स्टोर द कोर पॉइंट्स और कोर कॉन्सेप्ट्स. Yes. स्टोर करना ही पड़ता है, तभी एग्जाम निकलता है.
बिल्कुल सर, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, हाउ वर यू इन थ्योरी सब्जेक्ट, जैसे ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, हाउ यू यूज्ड टू क्लैम मैं एंड कैसे पढ़। हाँ, मैं अपना ट्रिक बताता हूँ। मेरा थ्योरी बहुत स्ट्रांग था क्योंकि मैं सीएस पहले कर लिया था, ठीक है। तो सीएस में मेरे जो सर थे, लॉ में पढ़ाते थे, उन्होंने हमें, वो उनका फर्स्ट बैच था और वही हमारा लास्ट बैच था। उन्होंने अच्छा, उसके पहले भी किसी को नहीं पढ़ाया था और हमारे बाद भी किसी को नहीं पढ़ाया। किसी को नहीं पढ़ाया, बिल्कुल। तो वी वेर फॉर्चुनेट कि हम लोगों के लिए वो अवतार बन के आए, पढ़ाए और चले गए। तो उन्होंने हमें बेयर एक्ट पढ़ाया, मतलब ही वॉज अ सीए प्रैक्टिशनर दैट टाइम। तो उन्होंने सारा चीज बेयर एक्ट से पढ़ाया। बेयर एक्ट रीड करना सीखो, एंड वी गॉट सो मच इंटरेस्ट इन रीडिंग लॉ कि हम लोग को, वो बोलते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द वर्ड्स, वो ट्रिक आ गया राइट राइट। कि शैल का मतलब क्या है, कॉमा का मतलब क्या है, प्रोवाइडेड का मतलब क्या है, हम लोग को रीड करना है। और वो इतना इंटरेस्टिंग था कि हम लोगों को याद होने लगा। और हम लोग भी उस समय, डिस्ट्रैक्शन नहीं था उतना, मोबाइल वोबाइल नहीं था, पढ़ते थे या खेलते थे, बस दो ही काम था। तो पढ़ाई ज्यादा करते थे। सर्कल भी हमारा बहुत स्ट्रांग था, तो हम लोग आपस में बहुत डिस्कस करते थे, मतलब आज मैं पढ़ के आया, तू पढ़ के आया, चल बात करते हैं उसके बारे में। तो मैं कुछ हाँ भूल सर, गया तो आप बता दिए। तो मेरा क्वालिटी था कि मैं कभी भी कुछ भूल जाता था ना, तो मेरा लिसनिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रांग था। तो मैं सामने वाले को बोलता था, भाई सुना देना मेरे को। तो जब हम बोल देता था, अब वो भूल जाएगा, मेरे को याद हो जाएगा, ऐसा होता था। सर दैट आई कैन रेजोनेट। हाँ, लिसनिंग एबिलिटी सर यूजुअली काफी, अगर आप ध्यान से एक बार कंसंट्रेशन से सुन लेते हो ना, तो वो काम करता है 3 और 4 टाइम्स रीडिंग का। राइट अगर राइट। आपने 3 बार पढ़ा और एक बार ध्यान से सुन लिया, तो वो ज्यादा मेमोराइज आप एक बार हाँ, सुन के कर पाओ। एक्चुअली तो पढ़ना मतलब, ये बहुत अच्छा। आदिकाल से आप देखोगे, पढ़ना मतलब तो लिसन करना ही था। वो तो राइटिंग वाइटिंग बाद में आ गया। राइटिंग इज बेसिकली फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो हम लोग लिखने का ही काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं। तो मेरा ये हैबिट था। तो मैं सीएस किया हुआ था, तो मुझे थ्योरी में कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ। सीएस में मेरा ऑल इंडिया रैंक वैंक आ गया था। तो एक अलग कॉन्फिडेंस ही था कि सीएस है तो लॉ ऑडिट तो ऐसे ही निकाल देंगे। या बट ऑडिट आई स्ट्रगल्ड लिटरली, बिकॉज हमारे टाइम दो पेपर था ओल्ड सिलेबस में, ऑडिट और इसका। तो इसका में तो फिर भी मेरा मार्क्स अच्छा आ गया था, एग्जाम्शन आ गया था, बट ऑडिट में मेरा भी 40 ही आया था। सर मेरा भी 43 है ऑडिट तो में। ऑडिट तो सर ऑडिट में एक्चुअली, वही प्रॉब्लम था जो मैं आपको बोला, यस क्योंकि सर, मैं ट्यूशन परफेक्ट ऑन व्यूशन द कुछ पॉइंट। भी नहीं लिया था। तो मुझे बाद में एहसास हुआ कि वेयर आई एम मिसिंग। अगर मुझे ऑडिट रिपीट करना पड़ता तो शायद मैं अपनी गलती को एहसास कर लिया था कि मेरा क्या मिस्टेक हो गया। लकीली आई सिक्योर्ड 40-41 ही कुछ आया था, तो निकल गए। सो मुझे, और दूसरा मेरा जो वो साइड समरी वाला जो टेक्निक है, वो मैं भी बहुत यूज करता था, मतलब वो तो सर हमने आपसे ही सीखा है सर, हाँ, क्लास में आप पढ़ाते थे। तो रियली मतलब आपसे सीख के हमने जब अप्लाई करा ना, तो इट रियली हेल्प इन ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट करेक्ट ओनली इन करेक्ट करेक्ट। कॉस्ट बट इन ऑल द सब्जेक्ट्स। जहाँ जहाँ पे भी, नॉट ओनली इन थ्योरी, बट यू यूज टू से कि प्रैक्टिकल सॉल्व करते टाइम फर्स्ट टाइम में साइड में जो ट्रिकी पॉइंट है वो लिख लो। तो सर वो चीजें काफी हेल्प करती है टाइम बचाने में। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर डूइंग सेकंड रिवीजन, आपको पूरा क्वेश्चन नहीं देखना, सिर्फ वो हाँ, पॉइंट देख लिया, गो थ्रू कर लिया, हो गया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वही वही ट्रिक था मेरा। ये मुझे कब एहसास हुआ कि अ, हम लोग जब सीएस में इनडायरेक्ट टैक्स देने गए थे एग्जाम, तो सीएस में इनडायरेक्ट टैक्स बहुत वास्ट था, मतलब ह्यूज। तो हमारे समय एक बुक आता था, वेंकटेश्वरन का, अभी तो नहीं आता है, पहले आता था। चुन के एक बुक स्टोर से जाके लेके आया था, उनको बोला था सबसे पतली बुक जो होगा वो देना। तो वेंकटेश्वरन का बुक आया। अब वो भी इतना वॉल्यूम सबसे पतला में कि वो एक दिन में कोई कर ही नहीं सके। तो मैंने अपने सर से जाके बोला कि सर इसको कैसे पढ़ें। तो उन्होंने कुछ कुछ टॉपिक्स बताए कि ये टॉपिक्स तो तुमको पढ़ना ही पढ़ना, बाकी तुम देख लो। तो वो टॉपिक्स, वही एबीसी एनालिसिस, जैसा कुछ नहीं था, जैसा कुछ नहीं था, जैसे सीएस के सिलेबस के हिसाब से वो बुक नहीं था, वो बुक जनरल बुक था। तो उन्होंने सिलेबस और बुक को मैच करा दिया था कि सर सतीश ये सिलेबस में है तो ये पढ़ना ही है, और जो जो ये तुम्हारे बुक में एक्स्ट्रा दिया वो मत पढ़ना, क्योंकि वो तुम्हारे सीएस एग्जाम में नहीं आता है। बुक तो जनरल थी, सीएस के हिसाब से नहीं आती थी उस समय।
तो हमने सिलेबस पूरा ग्रिप में रखा, और मैंने क्या किया पता नहीं, मेरे को बोरिंग लगता था वो थ्योरी, बार बार एक चीज पढ़ना बार बार। तो मैं देखा इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो इंटरेस्टिंग कैसे बनाया कि मैं लिखते लिखते जो भी पढ़ता था उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन किया। मेरे हर बुक में ये चीज लिखा हुआ रहता है कि पहले मैं समझ लूंगा, स्टेप नंबर 2 मैं उसको समराइज करके कहीं लिख लूंगा बुक में, कि एक पेज को मेरे को बार बार नहीं पढ़ना पड़े, और फिर वो समरी से मैं रिटेन करने का कोशिश करूंगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो 3 स्टेप का खेल है, और इससे बिल्कुल। मैंने पूरा बुक का जो जो पार्ट सीएस के सिलेबस में था वो पूरा का पूरा मैंने मार्क करके पढ़ लिया, और मैं वो समरी को 3 बार घुमा लिया। मुझे सब याद है, डे बिफोर एग्जाम भी मुझे सब याद, मतलब मैं 3 बार घुमा लिया वापस डे बिफोर एग्जाम, बिकॉज समरी घुमाना था। और मैं जब एग्जाम हॉल में जाके देख रहा हूँ तो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, उस समय एक्सरसाइज होता था, कस्टम्स होता था, तो एक्सरसाइज बहुत बड़ा था, तो मेरा तो एक्सरसाइज ही खत्म नहीं हुआ, बाकी कैसे करूंगा। और मैं समझ नहीं पाया कि यार मैं गलत तरीके से पढ़ लिया क्या, मेरा तो 3 बार हो गया था। तो लेट्स सी क्या होता है, देखें, पता नहीं। हाँ, एग्जाम हॉल में घुसे, मैं तो अपना पेपर दे के आ जाता, मेरे को नहीं पता था मेरा रैंक वैंक आने वाला है। मैं तो पेपर दे के आ जाता था, बाहर निकलते थे फ्रेंड लोग बोलते थे मेरा ये छूट गया, मेरा ये छूट गया, और फिर मैं बोलता था मेरा तो पूरा हो गया, अब मैं कैसे बोलूँ इनके सामने, जवाब क्या दूं, मेरा पूरा हो गया, बोलने को नहीं बन रहा है। तो मैं भी झूठ बोल देता था, यार मेरा भी छूट गया यार। तो वो मेरे को ग्रुप में लेते थे, अगर उनको ये बोल दूं कि मेरा पूरा हो गया तो वो ग्रुप से बाहर कर निकाल देंगे निकाल देंगे, अरे तो पूरा करके आया, इसको साइड कर। तो मैं भी झूठ बोल रहा था, नहीं यार मेरा भी छूट गया, मेरा भी ऐसे ही ठीक ठाक ही गया है, मैं क्या बोलूं। रैंक आने के बाद तो निकाल दिया होगा। रैंक आने के बाद निकाल दिया। तो उनको कन्फेस करना पड़ा, मैं जाके देख मेरे को नहीं पता भाई मेरा रैंक कैसे आया, कुछ मिस्टेक हुआ है, तो मैं तेरे ग्रुप में रहना चाहता हूँ। तो ठीक है, टाइम टाइम से हमने मैच्योरिटी समझी और आगे बढ़े। तो ओवरऑल अच्छा ही था, याद आता आज भी। आप देखो इस बात को 14 साल हो गए, लेकिन Yes, आदमी भूलता नहीं है। भूलता नहीं है। का- ये तो प्लेजेंट टाइम होते हैं हाँ, सर। राइट। तो ऐसे ही है, चलिए ऐसे ही रैपिड फायर राउंड खेलते हैं आपके साथ, ठीक है। सर मैं रैपिड आपको 2 फायर। ऑप्शन दूंगा, आप एक तो फटाफट चुनेंगे बिना सोचे, ओके सर। ठीक है। तो जैसे जो आपको पसंद हो, जिस मतलब जिस चीज से आपको लगता है कि आपकी आइडेंटिटी ज्यादा आती है, ओके। तो पहला सवाल है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। ग्रुप 2। ग्रुप 2, कॉस्ट या डीटी? डीटी। ओके। थ्योरी या प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल। ठीक है। सुबह या शाम? मॉर्निंग, रात। मॉर्निंग या नाइट, ऐसे पूछूं? नाइट। होता है ना किसी का नाइट में पढ़ने का ज्यादा इच्छा होता सर है। नाइट, 9%, टोटली 9%। ठीक है। घर का खाना कि बाहर का खाना? बाहर का खाना। टी शर्ट और शर्ट? शर्ट। शर्ट, ओके। ऋतिक रोशन की शाहरुख खान? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन, चलिए बढ़िया है। और और क्या पूछूं आपसे, मम्मी या पापा? टफ चॉइस। नहीं नहीं बोल सकता सर, दोनों। नो आंसर। सर लड़की लोग में डिसाइडेड होता है, एक फटाक से चूज कर दिया लोग। नहीं सर, मतलब पापा भले एक्सप्रेस नहीं करते, बट पापा ने बहुत किया है, सिमिलरली मम्मी ने भी बहुत किया है, सो आई कैन नॉट चूज अ पर्टिकुलर वन पर नॉट। चलिए ठीक है, आई इट ऑन यू, नो प्रॉब्लम। दिल्ली या बॉम्बे? द मुंबई। मुंबई। I already been to Delhi, so I want to try Mumbai once. जॉब और बिजनेस? Job. जॉब। बिग 4 या इंडस्ट्री? Industry. ओके। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? Love marriage. अगर हुआ तो। मेरा प्रिंसिपल बहुत क्लियर था, लाइफ में लव और मैरिज को मिक्स नहीं करूंगा। अरे प्यार तो हम बहुत जन से करते हैं, अपने स्टूडेंट से करते हैं, मम्मी से करते हैं, भाई से करते हैं, बहन से करते हैं। मैरिज अलग है, लव अलग है।
ये मेरा प्रिंसिपल था। खैर सर कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहिए। एज यू सेड दिल्ली और मुंबई, आई ऑलरेडी बीन टू दिल्ली, तो मेरे को मुंबई ट्राई करना है। आई हैव ऑलरेडी बीन टू बिग फोर, तो मेरे को इंडस्ट्री ट्राई करना है। सिमिलरली गुड। सर लव मैरिज भी ट्राई करना तो अरेंज मैरिज थोड़ी ना हो रखा है। है। सर वो तो पक्का है ना होना, अभी जैसे हालात में भी होना है। सही है, सही है। चलो बढ़िया है। पॉइंट यही है, स्टूडेंट्स को अपने आप को पहचानने का जरूरत है और एक बिल्कुल सिस्टम को फॉलो करने का जरूरत है। दिस इज व्हाट डेफिनेटली आई फील। एंड क्या होता है, अपने ऊपर विश्वास चाहिए कि मैं कर लूँगा। तो डेफिनेटली आपने अपने ऊपर विश्वास किया और वो हो गया। बिल्कुल चलो एक लास्ट क्वेश्चन यही है कि यस हाउ डू यू थिंक your experience was with SJC, and how teaching or whatever you learned from us helped you on overall basis, not just related to costing. sir, as I mentioned, your teaching tricks that you have taught us, like summarize the things, mark important points. I would say कि मैं IPCC में भी सोचता था बट मैं कर नहीं पाता था, बट प्रैक्टिस में यू ब्रॉट दिस अप्रोच इनटू आवर प्रैक्टिस। सो व्हेन आई डिड दिस थिंग इन कॉस्टिंग, तो वो एक हैबिट बन गया था मेरे लिए, विच आई फॉलोड फॉर माय अदर सब्जेक्ट्स। सो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वुड मेंशन। सेकेंडली सर, आपके रोज रोज के व्हेन व्हाइल गिविंग लेक्चर्स यू यूज्ड टू मोटिवेट इन इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लेक्चर्स। तो यू वुड से कि अभी पढ़ लो, बाद में टाइम नहीं मिलेगा, और अभी ये सब चीजें गो थ्रू करना है, थ्योरी अभी देखना है। एंड यू यूज्ड टू आई वुड से कि कवर एवरी थ्योरी टॉपिक इन द क्लास इटसेल्फ। यू वुडंट गिव अस द होमवर्क फॉर डूइंग अस ourselves, तो वो पॉइंट मुझे अच्छा लगा था। सेकेंडली सर, योर मटेरियल, आई वुड से दैट इज द बेस्ट पार्ट आई वुड से अबाउट SDC, कि उनका मटेरियल बहुत ही प्रिसाइज है, कंसाइज है एंड सिस्टमेटिकली अरेंज है। तो सर ऑनेस्टली दीज आर माई फीलिंग्स कि जो बेस्ट पार्ट आई वुड से अबाउट SDC इज द मटेरियल, then about your motivation and your guidance and the tricks that you teach in the exams. These are the best parts that I would find about SDC. और सर कोई कंप्लेन मेरी है नहीं, क्योंकि मेरे को कोई दिक्कत भी हुआ था तो आई contacted your team members and they were all very helpful, तो मेरा प्रॉब्लम भी सर 1-2 दिन में सॉल्व हो जाता। गुड गुड गुड, थैंक यू सो मच। अब आगे का क्या प्लान है आपका, मतलब कि सिंस आपका रैंक वैंक है तो कैसे आप आगे बढ़ोगे, मतलब हाउ विल यू स्टार्ट योर जर्नी नेक्स्ट? सर अभी जॉब ही सोचा है, so I'll start applying। कैंपस प्लेसमेंट एक ऑप्शन है, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट है, लिंक्डइन है। तो सर these are the various sources through which I thought of moving into job thing currently। आगे का पढ़ाई बिजनेस भी का सोचा है भी कुछ और? सर सोचता तो मैं हूँ, आई डोंट नो वेदर आई विल बी एबल, बट मेरा मन है सर MBA करने का फ्रॉम टॉप B स्कूल। तो मन तो है सर, लेट्स सी क्या हो पाता है आगे। होगा, जरूर होगा। बस क्या है, आपको थोड़ा सा अपने आप को सेटल करना है पहले, बोलते हैं ना। यस मैं भी पिछले ही दिन बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए डब्बा है, ठीक है, इसमें कुछ डालते जाएंगे तो वो पाइल अप होके पहाड़ जैसा बन जाता है, फिर उसको हिला के ऐसे सेटल करते हैं। अभी आपने अपने करियर में इतना कुछ डाला है, थोड़ा सा सेटल कर लो, सेटल, बिल्कुल सर। स्टेबल हो जाओगे, आपको लगेगा रूटीन आ गया लाइफ में, स्टेबिलिटी आ गया। माइंड का ग्रोथ कब रुकता है पता है? हमारा माइंड हमेशा एक सिचुएशन में जाता है, अपने आप को अडेप्ट करता है और फिर सेटल डाउन हो जाता है, तो उसको वो चीज़ नॉर्मल लगने लगता है, अच्छा लगता है उस माइंड को। तो कुछ माइंड ऐसे होते हैं कि वो सेटल करके इंजॉय करता है, कुछ माइंड ऐसे होते हैं जो सेटल होने के बाद अनईजी फील करते हैं। तो देखा ये गया है पास्ट में, जो जो सेटल होने के बाद अनईजी रहते हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि उनको फिर कुछ करने का कीड़ा हो जाता है। और जो सेटल होने लगते हैं उनका ग्रोथ भी स्टेबल होने लग जाता है। स्टेबल। तो हम लोग एक वर्ड बोलते हैं, हसल, हसल, कीप हसलिंग। मतलब ये जो स्ट्रगल आपने अभी फेस किया है, ये स्ट्रगल जारी रहेगा,
Yes, ठीक है, definitely. जस्ट दैट यू आर, सिंस यू हैव ऑलरेडी पास्ड द फर्स्ट बिगेस्ट स्ट्रगल ऑफ योर लाइफ, तो यू हैव मोर एबिलिटीज टू फाइट नाउ। आपके पास और एबिलिटीज हैं, आपको पता है कि मेरे को लड़ना आ गया है, मैं एक मैदान जीत चुका हूँ, जंग जीत चुका हूँ, तो दूसरी भी जीत लूंगा। बट संघर्ष जारी रहेगा, वो कभी खत्म नहीं। वो खत्म नहीं होगा। मेरे मेरे मेंटोर, मेरे एक सर हैं, कैलकाटा में पढ़ाते हैं अभी भी, उन्होंने एक बात मुझे अभी हाल में कही थी कि ज़िंदगी में सतीश 3 स्ट्रगल हमेशा रहेगा। पहले खुद से जुड़ा हुआ, पर्सनल यानी हेल्थ रिलेटेड हो सकता है, दूसरा स्ट्रगल फैमिली रिलेटेड, तीसरा स्ट्रगल प्रोफेशन या बिजनेस रिलेटेड, जिसको आप अपने करियर रिलेटेड स्ट्रगल बोल सकते हो। तो ये 3 स्ट्रगल लाइफ में पेरेनियली चलता रहता है, चलता है फैमिली, पर्सनल, बिजनेस या प्रोफेशन। प्रोफेशन। और ये कभी एक खत्म होगा, दूसरा चालू, दूसरा खत्म होगा, ये चालू। विशियस सर्कल है सर, ये सर्कल एक के से हम बाद लोग एक चलता बाहर है। नहीं निकल सकते। निकल सकते। इससे बाहर निकलना मतलब ऊपर जाना है, बस ये समझ लेना। सही बात है। तो आपने एक मुकाम हासिल किया है, तो अब आपको लड़ना आ गया है। Yes, मतलब आप हर जंग जीत चुके हैं ऐसा मत सोचिएगा, नहीं नहीं सर, बिल्कुल है नहीं। ना। तो बस ऐसे ही लड़ते रहिएगा, इसी तरह से प्लानिंग करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। जितना जितना आप समझ लीजिए स्ट्रगल आया, उतना आप एम्पावर्ड होंगे, उतना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उतना आपका वैल्यू बढ़ेगा। हर स्ट्रगल Yes. को स्ट्रगल जैसे नेगेटिवली नहीं सोचना है, ऐसा सोचना है कि ये स्ट्रगल भी मेरे लिए एक लर्निंग है, तो चलो इसको भी सीख लेंगे, राइट। जितना आप झेलेंगे। मुझे वो हाँ? रिकॉल हो गया, आप क्लास में सब बातें बोलते थे तो वही क्लासेस की बातें सर माइंड में आ रही है। जैसे दिस इज अ गुड थिंग कि आपकी हैबिट में ही आ गया है कि बच्चों को मोटिवेट करना है। उससे सर आई वोंट से कि मुझे हेल्प होता है, बट सबको इतना हेल्प होता है, व्हेन यू से दीज वर्ड्स। तो एक उल्टा भी है, उल्टा भी है। बहुत लोग बोलते हैं अरे मेरा टाइम वेस्ट कर रहा, पढ़ाता कम। सर वो ठीक है, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। मेरे अकॉर्डिंग सर यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट थिंग व्हिच इज इंस्पायरिंग ऑल ऑफ अस। मैं ये क्यों बोलता हूँ, उसका एक रीजन है। मुझे मालूम है आप अपने जिस एज में आ गए ना, फैक्चुअली आप अपने पेरेंट्स से भी इतना बात नहीं करते हैं मन का। और मैं हर स्टूडेंट से मिलते रहता हूँ, तो उनकी प्रॉब्लम्स इकट्ठा होती रहती है मेरे पास। तो मुझे ये स्टूडेंट ने ही बताया कि सर कुछ भी हो वो आपका क्लास सुनेगा ही सुनेगा। तो ये मतलब अगर मैं अपने क्लास में बोल दूँ ना, तो वो सुनेगा ही सुनेगा। अगर मैं साइड में बोलूँ ना, आज मोटिवेशन सेशन है, कोई नहीं आएगा। तो उसके चॉइस पे ना, वो आएगा कि नहीं आएगा, देखेगा, फ्री होगा तो आएगा, नहीं आएगा। बट क्लास में आप बोल दोगे ना, तो वो सुनेगा ही सुनेगा। तो उसका क्या पता कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए आपके कारण ना, तो वो सीए तो बन ही जाएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि आप पूरा पढ़ाएंगे। तो लाइफ में भी बहुत हैप्पीली सक्सेसफुल हो पाएगा। मतलब दोनों चीज़ साथ में चाहिए ना, खुशियाँ और सक्सेसफुल होना। तो मैं कोशिश करता हूँ अपने तरफ से कि कम से कम पढ़ाई के बहाने ही सही, राइट। चलिए बढ़िया है। आई विश यू ऑल द बेस्ट पीयूष, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। सर वुड यू माइंड मैं आल्सो प्ले few rapid fire questions? हाँ, यस, if व्हाई you नॉट। won't mind. चलो Okay, स्टार्ट। सर SFM और SCMP? ऑफ कोर्स एससीएमपी, ओके, थ्योरी बिकॉज और प्रैक्टिकल? एसएफएम मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था पढ़ाना, और एससीएमपी मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ। हालांकि जो मेरे से एसएफएम पढ़ते हैं, वो एससीएम पढ़ने के बाद और एसएफएम पढ़ने के बाद वो बोलते हैं कि सर आपका एसएफएम में ज़्यादा मज़ा आया। ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड एसएफएम आई हैड टू डेलिब्रेट, आई हैड टू मेक श्योर दैट जो एससीएमपी का एक्सपेक्टेशंस है वो मैच कराना है एसएफएम में भी। तो ऑफ कोर्स आई ट्राइड माय बेस्ट, बट क्या होता है ना कि एक नाम फट जाता है एक चीज़ के लिए, सब्जेक्ट के लिए। तो नाम पहले एससीएमपी का फट गया। नहीं सही बात। तो मैं बैलेंस करके चलता हूँ एसएफएम को भी, ऐसा नहीं है। और बट वही आपका इंटरेस्ट, आपको मजा किस में आता है ज्यादा पढ़ाने? I'll tell you पढ़ाने में मज़ा
ऐसे है ना कि SCMP और SFM बहुत ज़्यादा क्रॉस कनेक्टेड है. मतलब आई विल से कि अगर मैं SFM नहीं पढ़ा रहा होता तो मेरा SCMP में नॉलेज थोड़ा सा वीक रहता, क्योंकि मैं सीमा पास किया था यूके वाला. तो यूके वाला सीमा का कोर्स में ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 सब्जेक्ट आता है. इंटरेस्टिंगली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वहाँ पे सिर्फ ज़्यादातर रिस्क मैनेजमेंट ही पढ़ाते हैं. तो मैंने उनसे वहाँ पे मेल करके पूछा था कि आप ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ा रहे हैं मेरे को. तो उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी वो भी घुस जाता है, FR भी घुस जाता है. तो बोले कि वो फाइनेंस अगर आप नहीं जानोगे तो बिजनेस को कैसे आप एडवाइस करोगे. तो आई विल टेल यू कि मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि मैं SFM इतना जानता हूँ, तो मैं SCMP में भी बहुत अच्छा कभी क्रॉस कनेक्ट कर पाता हूँ, मैं स्टूडेंट को गाइड भी कर पाता हूँ. और ऐसा कुछ नहीं कि मुझे सबका महाराजा बनना है, ऐसा कुछ नहीं. ठीक है, स्टूडेंट किसी एक बहाने से अपने पास आए, अपना भी काम होता है, उनका भी काम होता है, तो जिससे भी बहाने से आ जाए कोई दिक्कत नहीं है. बट सही बात है सर, टॉपिक्स आई मीन सब्जेक्ट्स तो कनेक्टेड है एंड आई थिंक आप एक को पढ़ाओगे तो ज्यादा एंजॉय you would be doing by teaching both of these subjects. But problem Because is as you related to time. See, many students do take class from me for SFM also. तो they might be saying that कि जितना वीडियोस आप SCM का निकालते हो उतना SFM का नहीं निकालते हो. तो I have to also do Pareto analysis of the things, you know. तो I try to give my 100%, बट कहीं ना कहीं वो बायसनेस तो रहता है, बिकॉज स्टूडेंट्स के माइंड में भी रहता है ना कि SFM और भी बहुत अच्छे से टीचर्स हैं जो मेरे से SFM में ज़्यादा एक्सपीरियंस है. एक्सेप्ट दैट. तो होता है किसी किसी का कनेक्ट बैठ जाता है ना, कि आपका मेरे से कनेक्ट बैठ गया तो आपको लगेगा सर से SFM पढ़ लेते, तो वैसा ही स्टूडेंट होता है. Okay, sir. Second question: what you like? I would say studying more theory subjects or practical subjects. आई लाइक स्टडिंग थ्योरी मोर. इसका रीज़न है, मैं बहुत आलसी हूँ. प्रैक्टिकल में कैलकुलेटर उठाओ लिखो यार, थ्योरी क्या है, सारा सामने सामने पढ़ो हो गया. तो मेरे को ठीक लगता है थ्योरी, कि समझना ही तो है, खत्म हो गया. सर समझना समझ आता है, बट व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर ICAI सब्जेक्ट तो समझने से काम नहीं होता है, वहाँ पे फिर हाँ, वो तो रटने का तो काम होगा ही अलग से. तो मैं वो बोला ना, चीज़ मैं सर मेरी लिसनिंग एबिलिटीज थी, तो मैं अपने फ्रेंड्स लोग को बहुत परेशान करता था, भाई सुना देना मेरे को, सुना देना, तू पढ़ के मेरे को सुना दे. तो आजकल तो नया आ गया, आप सबके पास मोबाइल है, आपके पास आप अपना ऑडियो खुद रिकॉर्ड करते हो, खुद सुनो. हम लोग के समय उसमें साधन नहीं था. बट थ्योरी मुझे थोड़ा इजी लगता है पढ़ना, मेहनत कम Okay, होता sir. है. Last question. I think it would be difficult one for you, and you have to answer honestly. Honestly, हाँ sir. So, what do you love more? I mean, your personal life or your professional life? प्रोफेशनल लाइफ. बिकॉज बोलते हैं ना, आई एम व्हेन आई सेल्फ एनालाइज आई फाइंड माई सेल्फ अ वर्कोहॉलिक पर्सन. मतलब बेचैनी ज़्यादा हो जाती है बिना काम के, नशा हो गया काम करने का. तो पर्सनल लाइफ या होता है ना कि मतलब यहाँ से रेस्ट लेके वहाँ पे जाने का मन करता है. ऐसा नहीं कि सर दोनों अपनी अपनी जगह, बट स्टिल एक जगह ज्यादा इंक्लिनेशन होता है. इंक्लिनेशन इसलिए आ जाता है ना, रीज़न इसका क्या है कि देखिए, आप एक चीज़ को कितनी बार कितना साल दे चुके हैं. मतलब मैं अपने घर में इतना समय नहीं दिया जितना मैंने अपने प्रोफेशन को दिया. तो अब क्या लगता है कि नहीं, यही करना है. घर वाले तो और भी हैं, भाई भी है, माँ बाप के लिए और भी बच्चे हैं, मैं अकेला नहीं हूँ. बट मेरे को यहाँ लगता है कि इंस्टीट्यूट में तो मैं ही अकेला हूँ, तो मुझे सबका ध्यान रखना है. तो अपने आप वो जिम्मेदारियाँ बढ़ते चली गई, और प्रोफेशनल लाइफ में ही ज़्यादा लगता है, बस यहीं पे सारा दिन बीतता है. चलो, मज़ा आया है ना? यस सर, बहुत मजा आया सर, काफी एंजॉय किया. फिर मिलेंगे. वो कॉफी विद SJC वाला सेशन हो गया ज्यादा, तो मुझे कॉफी की कमी थी. मैं तो लेके रखा हूँ. अच्छा, वर्चुअल कॉफी. चलो, ग्रेट. थैंक यू सो मच पीयूष, ऑल द बेस्ट. ओके सर, मिलते रहेंगे, टच में रहना. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली. ओके, बाय, टेक केयर. ओके सर, बाय, टेक केयर.